Namaskar students, this is Sanjay Grodiwal, lecturer in biology, and we are doing plant kingdom. In our two previous lecture videos, we have started plant kingdom for class 11th. We have started there. And today we are going to study about algae on the basis of classification of algae. In this lecture video, we will talk about the classification of algae and we will talk about some key points algae is classified based upon, जिसके बेस पर अपने algae को classified कर रखा है in three categories that are chlorophyceae, rhodophyceae and phaeophyceae. So chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae are three major classes of algae and it is classified on these key points written here. We will talk about all the aspects of classification of algae in this lecture video. Let's start this lecture with these key points that are common name, major pigments, stored food, cell wall, orientation and number of flagellum. उसके बाद है habitat and examples. Okay, so we will take one by one. But before proceeding this lecture video, a question is popped out in our mind. एक सवाल तो उठता ही ना. वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि what is the basis of classification of algae that are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae are three major classes of algae. What are the basis? What is the basis of this classification? Major basis of classification of algae is physical appearance and their habitat. How do they look like? किस तरह से वो दिखाई देते हैं? जिस तरह से क्लोरोफाइसी की बात करें, दे आर ग्रीन एल्गी. उसके बाद फियोफाइसी की बात करेंगे, ब्राउन एल्गी. एंड रोडोफाइसी इज वेल नोन एज रेड एल्गी. ये दिखने में कैसे होते हैं क्लोरोफाइसी? इसमें जितने भी अपने एल्गी को प्लेस करेंगे, ऑल दीज लुक लाइक ग्रीन कलर, इन ग्रीन कलर. तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. So this is the physical appearance of these classes of algae. ये इस तरह से दिखाई देते हैं, वो उनका physical appearance है. So in the case of chlorophyceae, all green colored algae are placed in chlorophyceae in this section or in this class. And if we talk about phaeophyceae, all brown algae are placed in this category. And last one, rhodophyceae, red algae are placed in this category. अगर रेड कलर की जो एल्गी है वो रोडोफाइसी में रखी हुई है, जो ब्राउन कलर की दिखाई देती है वो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उनका कलर है, कैसे दिखाई दे रहे हैं. और साथ में अपने लेंगे हैबिटेट को, कहां मिलते हैं. और कुछ इसके की पॉइंट्स है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज की पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन स्टडी Chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae separately in tabular form. इस टेबल के अंदर अपने इसको समझने वाले. तो फर्स्ट थिंग इज कॉमन नेम. कॉमन नेम इन द केस ऑफ chlorophyceae. In the case of chlorophyceae, all green algae are placed in this category. So well known कैसे है ये? Green algae. Phaeophyceae, brown algae. They are all known as brown algae. And third one, last one कौन से? Rhodophyceae, red algae. Green, brown and red. And next key point is major pigments. Pigments क्या होते हैं? Pigments are responsible to trap the sunlight and gives the color to the plant. वो प्लांट को कलर देने का काम करते हैं और साथ ही साथ जब फोटोसिंथेसिस चलता है तो वो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करता है. उसी से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं प्लांट्स. तो कलर देने का काम करते हैं. अपने को पता है मेजरली जिस तरह से क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर है, यहां पर फियोफाइसी में ब्राउन कलर है एंड रेड कलर्ड एल्गी इज रोडोफाइसी. तो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर गिवन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स. तो पिगमेंट्स यहां पर एक यूनिवर्सल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दैट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स. और क्लोरोफिल के भी कितने टाइप्स हैं? 7 टाइप्स होते हैं.
chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, and chlorophyll E. That are of 5 types of pigments found in all kind of plants. And the rest two chlorophyll, bacterioviridin and bacteriochlorophyll, that are found in some bacteria, cyanobacteria or blue-green algae, or you can say photosynthetic bacteria, जो अपना फूड खुद बना पाते हैं, उनके अंदर भी 2 क्लोरोफिल के टाइप मिलते हैं, दैट आर बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल. यहां बात हो रही प्लांट की, तो यहां प्लांट के केस में 5 टाइप का क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई. इनमें से भी क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट दैट इज मेजरली फाउंड इन प्लांट्स. सब में मिलता है. तो अपने लिखेंगे, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, सब में क्लोरोफिल ए जरूर मिलेगा. तो अपने यहां पर लिखेंगे CHL. ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? क्लोरोफिल की. क्लोरोफिल ए, यहां पर भी क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए. यहां पर भी क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए दिखाई देगा. यहां पर अगर अपने क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन एल्गी, दैट क्लोरोफिल बी इज ऑल्सो प्रेजेंट विद क्लोरोफिल ए. यहां पर अपने को क्लोरोफिल कौन सा दिखाई देगा? साथ में बी भी दिखाई देता है. क्लोरोफिल ए विद क्लोरोफिल बी. इसी तरह से क्लोरोफिल ए के साथ में अपने को क्लोरोफिल क्या दिखाई देगा? सी भी दिखाई देता है इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी. एंड इफ वी टॉक अबाउट, इफ वी गो विद रोडोफाइसी और रेड एल्गी, क्लोरोफिल डी इज ऑल्सो फाउंड. क्लोरोफिल डी इज ऑल्सो फाउंड इन द केस ऑफ रेड एल्गी विद क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा. एडिशनली क्या मिलेगा? बी, सी एंड डी. साथ में और भी पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं. यहां पर क्लोरोफिल ए, बी के साथ में अपने को क्या दिखाई देगा? यहां पर कैरोटिनॉइड्स भी दिखाई देंगे. कैरोटिनॉइड्स, ऑल दीज आर photosynthetic pigments. Okay, so carotenoids plus xanthophyll, यहां लिख देते हैं xanthophyll. ये यहां कंप्लीट नहीं हो पाया. तो carotenoids plus xanthophyll in the case of green algae with chlorophyll A and chlorophyll B. If we go with brown algae, chlorophyll A and C can be seen in the case of Phaeophyceae or brown algae with fucoxanthin. Fucoxanthin with एक और पिगमेंट मिलता है, वो नाम क्या है? बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन. ठीक है, तो ये 2 एडिशनली अपने को दिखाई देंगे पिगमेंट इन द लास्ट रेड एल्गी और रोडोफाइसी. सो क्लोरोफिल ए और डी तो दिखाई देंगे, उसके साथ में अपने को क्या दिखाई देंगे? फाइको इरिथ्रिन प्लस एक और मिलेगा फाइकोसाइनिन. So all these are photosynthetic pigments that are found in different kind of algae, whatever it is, green, brown or red algae. Second thing was major pigments that is completed with chlorophyll A, B, C, D and some additional pigments that are carotenoids, xanthophyll, fucoxanthin, beta carotene and phycoerythrin plus phycocyanin. ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिया. अब आते हैं थर्ड वन, स्टोर्ड फूड. अगर स्टोर्ड फूड की बात करें, इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. ये 2 फॉर्म हैं जिस फॉर्म के अंदर वो अपना फूड है वो स्टोर कर पाते हैं. अब बात आती है फियोफाइसी की. इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी दे कैन स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल प्लस साथ में क्या है? लेमिनरीन. These are the 2 types of stored food in the case of brown और Phaeophyceae. ठीक है, लास्ट वन क्या बच गया?
रोडोफाइसी। फ्लोरिडियन स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फ्लोरिडियन स्टार्च। They can store their food in the form of Floridian starch. Floridian starch. So ये stored food हुआ, starch plus sugar, उसके बाद mannitol plus laminin और last one है Floridian starch. तो ये कुछ फॉर्म हो गई। इस फॉर्म के अंदर डिफर काइंड ऑफ जो एल्गी है, they can store their food. Next key point is cell wall. देखिए मेजरली जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है वो सेलुलोज होता है। Whatever it is green, brown और red algae, all these are basically क्या है? ये प्लांट्स तो हैं, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्लांट की जो सेल वॉल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेजरली विद सेलुलोज। बगैर सेलुलोज के अपने इमेजिन नहीं कर सकते कि प्लांट की सेल वॉल तैयार होगी। तो सेलुलोज तो सब में डाला जाएगा, लेकिन कुछ एडिशनल भी होगा। तो देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? ग्रीन जो एल्गी है या क्लोरोफाइसी एल्गी है, उसमें मेजरली अपने को एक ही कंपोनेंट दिखाई देता है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज इसके केस में मिलेगा, किसके केस में? ब्राउन एल्गी। लेकिन साथ में अपने को क्या दिखाई देगा? एल्गिन भी दिखाई देता है। ये भी मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज के साथ इन द केस ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? ये सेलुलोज का ही बना होता है। इसकी बात चल रही है रेड एल्गी, इसमें सेलुलोज होता है, और क्लोरोफाइसी में सेलुलोज है, लेकिन जो ब्राउन एल्गी उसमें सेलुलोज के साथ एल्गिन दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। ये अगर एल्गी है, सपोज दिस इज योर एल्गी, एंड एल्गी कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन या मूवमेंट के बेस पर दो टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, इमोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मीन्स क्या होते हैं? दे कैन मूव, लोकोमोट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट आर लोकेटेड ऑन द बॉडी ऑफ एल्गी, तो इनको अपने बोलते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इज इन सिंगुलर फॉर्म, एंड when we pronunciate flagella, that considered it plural form। और दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर फ्लैजेला लिखा हो तो। और फ्लैजेलम की बात करें वो सिंगुलर फॉर्म की बात करें, यहां पर दो दिखा रखे हैं। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, मूवमेंट करते हैं इसकी हेल्प से, और लोकोमोट भी हो सकते हैं। तो अगर किसी एल्गी के अंदर ये फ्लैजेलम है, दैट कैन बी मोटाइल, वो मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोट हो सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो वो इमोटाइल हो गए, वो मोबाइल नहीं हो सकते, कहने का मतलब वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, तो फ्लैजेलम का आपने क्या देख रहे हैं? ओरिएंटेशन एंड नंबर। नंबर क्या होगा? ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंट किस टाइप से होगा, उनका लोकेशन क्या होगी लगने की, जिस तरह से यहाँ पे एपिकल फॉर्म में लगे हुए ऊपर की तरफ फ्लैजेलम है, दैट आर ओरिएंटेड एट एपिकल स्टेज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपने जिस तरह से नंबर जहां पर 2 है, इस तरह से 8 तक फ्लैजेलम देखे गए, तो उसी की अपने बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इन द केस ऑफ, सो फर्स्ट वी टेक ग्रीन एल्गी। इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी फ्लैजेलम कैन बी ऑफ 2 to 8, 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेलम देखे गए हैं, और जितने भी देखे गए हैं सब के सब क्या होते हैं? एपिकल, इस तरह से टॉप मोस्ट पे होते हैं, और सब के सब इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल मीन्स उनकी लेंथ, उनका जो लेंथ है वो इक्वल दिखाई देता है, दोनों बराबर लेंथ के होंगे। ठीक है, 2 हो चाहे 8। नेक्स्ट क्या है? ब्राउन एल्गी। यहां पर अपने को 2 दिखाई देते हैं। कितने फ्लैजेलम है? 2 फ्लैजेलम दिखाई देंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, और लेटरल पोजीशन पे लगे होंगे, आजू बाजू। कैसे होते हैं? लेटरल, लेफ्ट राइट में लगे होते हैं। ठीक है, यानी इस तरह अगल बगल।
लास्ट वन क्या है, अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होते। फिर लास्ट वन क्या है, रोडोफाइसी की बात करते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें मिलते ही नहीं। फ्लैजेलम और फ्लैजेला आर एब्सेंट इन द केस ऑफ रोडोफाइसी और रेड एल्गी। अब बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट हैबिटेट, वेयर डू दे लिव, और कह सकते हैं कहां पर दिखाई देते हैं, वो अपने आप देखने वाले। देखिए अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में स्टडी कर चुके हैं दैट ऑल एल्गी आर एक्वेटिक, सबके सब पानी में मिलते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो, ठीक है। तो यहाँ 3 टाइप के वाटर की मैं बात करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ वाटर। पहली फॉर्म क्या है वाटर की, दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली रूटीन लाइफ, जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी होता है वो तो है ही। दूसरा कौन सा है, ब्रैकिश वाटर है। और थर्ड वन होता है सॉल्ट वाटर और मरीन वाटर, जो कि खारा पानी होता है, समुद्र का पानी होता है। लेकिन बीच में एक और पानी आता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, देखिए ब्रैकिश वाटर एक नई टर्म आई है, उसके बारे में अपने बात कर सकते हैं। ब्रैकिश वाटर इज ए फॉर्म ऑफ वाटर दैट्स अ लाइन इन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर। ऐसा पानी जो खारा तो है लेकिन फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज्यादा खारा है। फ्रेश वाटर तो वैसे खारा होता नहीं है, लेकिन उसमें अगर मिनरल्स की बात करें, सॉल्ट की बात करें, तो कंपेरेटिवली उनसे ज्यादा क्या होते हैं, कह सकते हैं सैलिनिटी ज्यादा होती है, खारापन ज्यादा होता है। लेकिन जो समुद्र वाला पानी है, सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर है, उसके कंपैरिजन में इसकी सैलिनिटी, इसका जो खारापन है वो कम होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल अपने दे सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा ब्रैकिश वाटर का, द प्लेस वेयर रिवर्स मीट्स टू सी और ओशियन। ये वो जगह होती है जहां पर रिवर है वो मिलती है, कहां पर, ओशियन या मरीन वाटर के साथ में, या फिर जो समुद्र का पानी है, समुद्र और जो नदी है वो जहां पर आपस में मिलते हैं, वहां पर नदी है वो समुद्र में आके गिरती है, मिलती है, वो रीजन है, वो कौन सा पानी है वहां का, उस रीजन का पानी कैसा है, वो ब्रैकिश वाटर है। ना तो वो इतना खारा है जितना कि मरीन वाटर या समुद्र का पानी, और वो उतना साफ सुथरा भी नहीं है, उतना वो पीने लायक भी नहीं है जितना कि वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए चाहे कोई सी भी एल्गी हो, whatever it is, chlorophyce, phaeophyce or rhodophyce, all these algae can be found in all 3 forms of water। तो तीनों नाम लिख लेते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, ये ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकते हैं, अभी बताया था ब्रैकिश वाटर की। और ये मरीन वाटर या सलाइन वाटर, या कह सकते हैं कौन सा वाटर, सॉल्ट वाटर में भी मिल सकते हैं। लेकिन मोस्टली कहां मिलेंगे अपने को, फ्रेश वाटर में, ठीक है। और रेयरली देखे जाते हैं ब्रैकिश एंड मरीन वाटर में और सॉल्ट वाटर में। नेक्स्ट वन क्या है, इसी तरह से अपने फ्रेश वाटर की बात करेंगे, इसी तरह से ब्रैकिश वाटर, और इसी तरह से मरीन वाटर लिख दो या सॉल्ट वाटर लिख दो। तो मोस्टली ये इन दोनों में मिलते हैं, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो चाहे वो सॉल्ट वाटर हो। लेकिन यहां पर फ्रेश वाटर में बहुत कम, रेयरली देखे जाते हैं। इन द केस ऑफ रेड एल्गी, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, it can be seen mostly in saline water और salt water, यहाँ और मरीन वाटर, इनके अंदर वो रेयरली दिखाई देते हैं। या फिर कह सकते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं वहां पर इनकी प्रेजेंस है ना के बराबर होती है। फ्रेश वाटर के अंदर इनकी प्रेजेंस ना के बराबर होती है, रेयरली देखे जाते हैं ब्रैकिश वाटर में, और मोस्टली देखे जाते हैं किसमें, सलाइन वाटर में या सोल्ट वाटर में या मरीन वाटर में। लास्ट वन रह गया एग्जाम्पल्स, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एग्जाम्पल्स में क्या करेंगे अपने, ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। वॉलवॉक्स लिखा जा सकता है एग्जाम्पल में, वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगायरा लिखा जा सकता है, यूलोथ्रिक्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन अपने लिख लेते हैं यहां पर स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगायरा आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी का एग्जांपल क्या हुआ, फ्यूकस, इसके एग्जांपल क्या है, फ्यूकस। एक और है लेमिनेरिया, क्योंकि इसमें मिलता है लेमिनरीन एज स्टोर्ड फूड, और अपनों ने यहां पर लिख दिया, इसी तरह से इसका नाम पड़ गया लेमिनेरिया। और दूसरा एग्जांपल है फ्यूकस। लास्ट वन क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में 2 एग्जांपल लिखे जा सकते हैं,
पामेरिया, और दूसरा कौन सा है? कॉन्ड्रस। दूसरा कौन सा है? कॉन्ड्रस। दो एग्जाम्पल हो गए, पामेरिया, कॉन्ड्रस एग्जाम्पल है रेड एल्गी में, और इफ यू टॉक अबाउट फियोफाइसी, फ्यूकस और लैमिनेरिया कैन बी रिटन इन द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी. Where we talk about green algae, volvox and Spirogyra can be taken. With classification of algae, we have completed. We have just finished algae. Algae complete हो गया. And in next lecture video, we will start Bryophyta. So till then, bye and keep watching.